Shri Navneet Sehgal for the keynote address. Thank you. No, the good thing about my minister is that he has plenty of time to listen to me. So don't worry. Thank you. You see, this is one of the first program of the series of program that we had planned since the fund was launched by Nirmala ji here in Lucknow. As you are aware, we are a kind of a disadvantaged state in terms of exports because we are a landlocked one and we can't compete with the coastal states and some of the states which traditionally have an export background. But we have been doing extremely well in last 4.5 years and our exports have, as Minister was saying, jumped by almost 38%. And to that extent that last year, despite Corona, many of these states, they lost numbers in terms of the exports. But our numbers did not go down and they were almost 1,000 crores up by last year. So there is a huge potential for exports from here. हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में निर्यात का एक बहुत बड़ा स्कोप है. बहुत सारा हमारे यहाँ अकाउंट फॉर नहीं हो पाता है बिकॉज वो यहाँ से दिल्ली से एक्सपोर्ट हो जाता है, वो दिल्ली के खाते में चला जाता है. वो सबको हमारा जो टारगेट है, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, आवर टारगेट इज टू increase the exports to at least 3 lakh crore in next 3 years. For that, Ubharte Sitare like scheme is very beneficial and I would thank Exim and SIDBI both for sending their officers to explain and to kind of propose the hand-holding exercise. मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग इस प्रोग्राम को अब हर जिले में ले जा रहे हैं. एक्चुअली एक एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमने कंसल्टेंट तो हायर किया ही, बट एट द सेम टाइम वी आर वर्किंग ऑन एवरी डिस्ट्रिक्ट combined with the one district one product program. We have identified almost now 67 products. Those 67 products for each district, we have done a total diagnostic study of each product. Diagnostic study includes the whole SWOT analysis, the strengths, weaknesses, opportunities and threats of each product. And during that, we have found out there are a lot of interventions which are needed. There could be hard or soft interventions. Soft intervention, we are working on policy, and Ubharte Sitare is one of the soft interventions that are needed. Because during our discussion with the exporters, we have found that there is very less knowledge of financial opportunities available to the exporters. They are only, they're working on the traditional LC method and, the routine export credit systems. But we now have many new instruments of finance which are available to our exporters. But हमारे यहाँ वो हमारे जो छोटे शहर में जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं उन तक वो जानकारी नहीं है. दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो बहुत सारी ऐसी वर्ल्ड मार्केट्स हैं, जैसे अभी बात हो रही थी एक ग्लोबल सप्लाई चेन जो इधर कोरोना में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, एंड मैनी ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज़ हैव बीन ग्रैब्ड बाय आवर पीपल. Yesterday only I met an exporter, वो पूरा जितना हमारा Mercedes और BMW है उन सब के ऑटो कंपोनेंट्स का ऑर्डर अभी उनको अभी हाल में मिला है. जस्ट रिसेंटली दे गॉट एन ऑर्डर फॉर ऑल दोज कंपोनेंट्स. वी हैव पीपल हियर हु आर मेकिंग parts for F-16 and other high-end technology your instruments. So there is a huge scope and we need to fill that gap. और उस गैप को फिल करने के लिए हमको जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हमने एक एक्सपोर्ट प्लान भी साथ साथ बनाया है, उस एक्सपोर्ट प्लान में देयर आर पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर इश्यूज व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड.
And I would thank ELETS and both these organizations. Now we are making a program to take these teams to district level. District level बाद में जाएं, लेकिन पहले हम divisional level पे जरूर जाएंगे. और मैं हमारी जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है यूपी की, वो we will get them involved into it so that they get their exporters to sit with these two organizations and help them, one, identify units which can be supported in Ubharte Sitare Fund, and also to let them know about new innovative your instruments of finance which could help them both fund-based and non-fund-based support for export. क्या है, working capital is a very big issue. You know, lot of units, they had a lot of adverse impact during Corona on their working capital. Government came up with the emergency credit line. Still अभी भी बहुत सारी issues हैं जो कि हमारे जो फाइनेंसिंग नीड्स है उसको एड्रेस करना चाहिए. और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा हमारे जितने भी लोग आए हैं, न केवल एक्सपोर्टर बल्कि हमारे जो सरकारी भी लोग हैं आज इधर इस फंक्शन में, वो दिन भर बैठें और समझें, बिकॉज ये बम्बई से आए हुए लोग रोज़ तो नहीं आएंगे, बट हमारे लोग यहाँ रहेंगे. दे शुड अंडरस्टैंड क्या प्रोसेसेस हैं, कैसे हम जो हमारे छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स हैं कैसे हम उनको हैंड होल्ड करके आगे बढ़ा सकते हैं. एक और चीज़ जो रह गया है जो मैं सिडबी से रिक्वेस्ट करूँगा वो है फाइनेंसिंग ऑफ टेक्नोलॉजी. इसी अगर हमको ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ जुड़ना है तो अपनी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करनी पड़ेगी. सो टेक्नोलॉजी में नई दोनों सॉफ्ट और हार्ड टेक्नोलॉजी के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है. काफ़ी इश्यूज इसमें आ रहे हैं कि लोगों को ये नहीं मालूम कि हमें ये फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिलेगी. सिडबी की अपनी स्कीम्स भी हैं उसमें फॉर एक्सपोर्टर्स. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर उसके बारे में भी आप आज दिन में बताएंगे ताकि जो टेक्नोलॉजी का रिलेटेड इशू है प्लस फाइनेंस दोनों आज एड्रेस हों, हमें भी जानकारी हो, हमारे अधिकारियों को भी जानकारी हो कि ये कौन सी स्कीम है, कैसे हम उससे लिंकअप कर सकते हैं. बहुत बड़ा हमारे उत्तर प्रदेश में स्कोप है और काफ़ी हद तक हम लोगों ने उसका ग्राउंड वर्क तैयार कर लिया है. अभी पिछले साल भर में हम लोगों ने लगभग 1000 नई यूनिट जो हैं अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में नई रजिस्टर की हैं. मतलब दे हैव रिसेंटली बीन रजिस्टर्ड. सो देयर आर मैनी ऑफ देम स्टिल लेफ्ट आउट. So we are trying to get them on board so that they get into this organized sector, a formal sector where we have a regular communication with them. कोई नई चीज़ भारत सरकार ने की है या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आई है, हम उनको कन्वे कर सकें. एक जो और इशू है वो मैं एग्जिम बैंक पे छोड़ना चाहूँगा. कुछ देश ऐसे हैं, हमारे कुछ एक्सपोर्टर्स को ये इशू आए थे कि वो उन देशों की एलसी कमर्शियल बैंक्स नहीं खोलते हैं. ये कौन सा देश था वो जो मेरठ वाला एक, आई डोंट नो, देयर इज एन इशू, इथियोपिया और सम कंट्री. वी विल कन्वर्ट यू so that those chaps they have confirmed orders for export but they are running around here and there to get that financed. वो हमारा कोई शायद वहाँ ऐसा कोई रेसिप्रोकल सिस्टम नहीं है. तो एग्जिम बैंक एंड हाँ, तो वो एक थोड़ा सा हमारा वो भी इशू एक थोड़ा आप आए हैं एग्जिम बैंक, तो वो इनके सामने रखिएगा. और दूसरा ये हम लोग क्या कोई हेल्पलाइन शुरू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बोथ सिडबी एंड एग्जिम बैंक फॉर एक्सपोर्टर्स. वी वुड बी वेरी हैप्पी टू स्टार्ट दैट काइंड ऑफ ए हेल्पलाइन वेयर पीपल कैन आस्क क्वेश्चंस, पीपल कैन बी हैंड हेल्ड. उनको हम लोग आगे लाएं. बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया बहुत स्कोप है, हम 3 लाख करोड़ बड़े आसानी से उसको कर सकते हैं. ये थोड़ी हैंड होल्डिंग की हमको आवश्यकता है. बाकी जो चीज़ें हैं जो लैंडलॉक को सेटल करने के लिए ड्राई पोर्ट्स की और उसकी वी आर वर्किंग ऑन दैट. वी वर्किंग विद कॉमर्स मिनिस्ट्री टू सॉर्ट आउट दोज इश्यूज. ऑल्सो हमने अपनी पॉलिसी में भी अब फ्रेट सब्सिडी को आसान कर रहे हैं हम लोग, और पहले ट्रक्स पे अलाउड नहीं थी उसको भी शामिल कर रहे हैं ताकि जो यहाँ से बाय ट्रक कोई माल जाता है पोर्ट में उसको भी हम लोग सब्सिडाइज कर सकें सो दैट वी गिव देम ए कॉस्ट एडवांटेजेस. तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जब हम एक्सपोर्ट के पूरे फील्ड को हम देखते हैं.
जो सबसे बहुत आप रिसेंट है वो है हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स. So I am happy Flipkart is here. Amazon also we are working with. Flipkart, only Flipkart has sold worth our ODOP items worth 1,000 crore in last 1 year. हम लोग now we are signing an MOU with Amazon.com. .com is for exports and the Flipkart.in is for or Amazon.in is for local this thing. तो हम अपने एक्सपोर्टर्स को भी ये प्लेटफॉर्म जो हैं ई कॉमर्स के जो एक्सपोर्ट के प्लेटफॉर्म हैं वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको वहाँ तक लाने के लिए. और बड़ा अच्छा है आज ये फ्लिपकार्ट के लोग हैं, दे विल बी एबल टू एक्सप्लेन कि ऑन बोर्डिंग कैसे होगी, कैसे क्या होगा. मैं ये बताना चाहूँगा कि हम इस प्रोसेस को जो ये कंसल्टेशन का प्रोसेस है इसको और आगे बढ़ाएंगे, एग्रेसिवली करेंगे, ताकि ना केवल फाइनेंस की बल्कि टेक्नोलॉजी और जो और प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट में अगर हम सपोर्ट कर सकते हैं एक्सपोर्टर्स की तो हमको वहाँ भी उनको एक्सपोर्टर्स की मदद करेंगे हम लोग. थैंक यू सो मच. और आप लोगों ने अब बड़े अच्छे आप नंबर में, आई होप देयर आर एक्सपोर्टर्स ऑल्सो. तो ये इनको कम्युनिकेशन आज दिन भर आपका रहेगा. एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि ये आप जरा पवन बैठ जाना आपके साथ, तो वी ट्राई एंड गेट सम हेल्पलाइन फॉर एक्सपोर्टर्स. थैंक यू.